Hello friends, now we are going to start company accounts issue of share, and today we will discuss in detail about company accounts, meaning of company, meaning of shares, meaning of share capital, classification of share capitals, etc, etc. Various theoretical aspects we will discuss today. Friends, it is very important to discuss the theoretical aspect of this particular chapter. Otherwise, some practical angle or practical problem, whenever you will go for solving the practical questions, you will find some sort of problem. And as far as this particular chapter is concerned, it is completely related to Companies Act 2013. So on several occasions you will find the definitions which has been given by Companies Act 2013. And for those students who are pursuing for CMA Intermediate, it is very important for them, because in group 2 it is very essential and a scoring point, and it is correlated with your company's law. So it is very easy also, and why I'm saying it is a scoring you will understand very soon. And some MCQs are asked, so you cannot overrule the theoretical angle. So चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की प्रोसीडिंग्स शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेयर की मीनिंग क्या है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है और उनके वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं, हम लोग इसको जानेंगे। अभी सबसे पहली चीज है शेयर्स, नाम से ही इसका लिखा है शेयर। अब शेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर। The capital of a company is divided into units of a small denomination. छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। Each unit is called share. कंपनी की टोटल कैपिटल मान लीजिए 10 लाख है और उसको 10,000 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, तो एक हिस्से की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग शेयर कहेंगे। और each unit is called share. The word share implies an unit of share capital having property rights. In fact, share is one of a number of title of ownership in a company. कंपनी के बारे में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए मैंने अभी कहा कि आपको रेफरेंस बार बार मिलेंगे। एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड द रेफरेंस और डेफिनेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। 1956 हटा दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप जान चुके हैं। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स। ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है। अ कंपनी में डिवाइड इट्स कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ 3, 1, 10, 50 or 100 or any suitable whatever amount they want. Thus a share in a company is one of the units into which the total capital of company is divided. बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात। For example, if the capital of a company is rupees 20 lakh and divided into 2 lakh units of 10 each unit of 10 will be called a share of the company. Theoretically, a share may be of any denomination, but as directed by the stock exchange division of the finance ministry wide its circular letter dated 21st 1983, it should be of rupees 10 or rupees 100 in the case of equity shares and of rupees 100 in the case of preference shares. ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा तवज्जो देना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। नॉर्मली अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि कोई भी डिनोमिनेशन हो सकती है, 3, 1, 10, 50, 100 और कोई भी सुटेबल अमाउंट हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने फिर से आपको ये बात कही कि अगर टोटल कैपिटल 20 लाख रुपए है और उसे 2 लाख हिस्सों में विभाजित किया जाता है, तो एक हिस्से की कीमत वैल्यू जो आई वो 10 रुपए आई, तो अब इसे शेयर कहेंगे। थ्योरेटिकली शेयर क्या है ये तो भाई ठीक बात है, लेकिन यहाँ क्या जो बात आ रही है वो जरा देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कहा है कि डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री वाइड इट्स सर्कुलर लेटर डेटेड 21st 1983 इट शुड बी ऑफ रुपीज 10 और रुपीज 100 इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 और मोर। मतलब डिनोमिनेशन ऐसा हो जो डिविजिबल हो, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी मतलब फ्रैक्शन जो आप 3 रुपए का शेयर जारी करें, 7 रुपए का शेयर जारी करें, 13 रुपए की शेयर जारी करें, तो ये थोड़ा सा उटपटांग टाइप का लगता है और आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरीके से। रीजन इज दैट कि वो 10 रुपीज है, 50 रुपीज शेयर्स हो सकते हैं, 500 रुपीज की शेयर हो सकती हैं, तो वो डेनोमिनेशन जो तय करना होता है वो डेनोमिनेशन इस तरीके का हो जो इजीली डिविजिबल हो।
ये ध्यान रखना है कि 10 से 100 और 100,000 के भी शेयर हो सकते हैं, 500 रुपए के भी शेयर हो सकते हैं। तो डिनोमिनेशन उस तरीके से तय करना होता है। और ये कहां से आया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। इस सर्कुलर को आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेशन तय करते समय डिविजिबिलिटी का ख्याल रखना है। नेचर ऑफ शेयर क्या है कि शेयर रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द, ये इसका मतलब क्या है? अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या है इसका? बता सकते हैं कोई आप में से? एनीवन? अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है इसका? A share represents a fractional part of the share capital of a company. जितनी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको फ्रैक्शन में डिवाइड किया जाता है। Yes, अभी देखा हमने कि 20 लाख रुपए कैपिटल थी तो उसको हमने डिवाइड कर दिया था, फ्रैक्शन किया था, उसको टुकड़ों में बांटा था। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब टुकड़ा, एक हिस्सा, अंश। हम लोग अगर हिंदी करें शेयर का तो शेयर की हिंदी क्या आएगी? अंश। और अंश कैसे निकलेगा? जाहिर सी बात है कि टुकड़ों में बांटा जाएगा तभी अंश निकलेगा। और 20 लाख रुपए कैपिटल थी, उस 20 लाख को हमने क्या डिवाइड किया? किससे? 2 लाख के फ्रैक्शन में बांटा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया? एक पार्ट का वैल्यू क्या आया? 10 रुपए। ऐसा ही कुछ हुआ था ना। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोप्राइटरी रिलेशनशिप बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड द कंपनी। इन अदर वर्ड्स, इट इज द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। शेयर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप शेयर होल्डर हैं, और आप शेयर होल्डर हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी की प्रोप्राइटरशिप में इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो उतना हिस्सा का मालिकाना हक आपके पास है। बात समझ रहे? शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आर ट्रांसफरेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल्स। शेयर्स को हम लोग ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रीजन इज दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में शेयर्स आराम से ट्रांसफरेबल होते हैं। अब देखिए यहां पे भी जो बिगिनर्स हैं, आपने अगर नहीं करा कभी कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये लेक्चर और ये क्लास आज की है डिवोटेड कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग चलिए सर, बिल्कुल जीरो से शुरू करिए सर। तो ये जीरो से ही शुरुआत हो रही है, और आपने क्या क्लास 12th में पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, इट डजंट मैटर, आप यहां से करेंगे शुरुआत। टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स। अ कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, नेमली प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि शेयर्स 2 तरह के होते हैं। अभी हमने देखा कि कंपनी की टोटल कैपिटल 20 लाख रुपए, और उसको अगर हमने 2 लाख टुकड़ों में बांट दिया तो एक टुकड़े की कीमत कितनी हो गई? 10। अब वहां पे भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। कैसे? तो शेयर्स हो जाए प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो अब आपके ध्यान में सवाल आएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और इक्विटी शेयर्स क्या है। 2 ही तरह के शेयर्स इशू कर सकती हैं कंपनियां, एक प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर्स। और हम लोग अभी तुरंत जानेंगे, क्विक रिकैप लेंगे इसका, और बहुत ही स्पीडियर मोड में इस चीज को फिनिश कर लेंगे, और आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स होते क्या है। देखिए प्रेफरेंस शेयर जो है, अब सेक्शन 43 क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच देयर इज प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। उनको डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सेकंड, टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के समापन पर उनको एक और प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, यानी कि 2 तरह के प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं। सबसे पहला कि डिविडेंड लेने का राइट उनको इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। दूसरा कि कंपनी जब समापन पे जाती है यानी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप पे जाती है तो उनको रिफंड ऑफ कैपिटल जब होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिफंड होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मान लीजिए कि एक फर्म में 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर में एक प्रेफरेंशियल पार्टनर हो और एक इक्विटी पार्टनर है। ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बात ना करें तो दोनों ओनर हैं, दोनों पूंजी लगाने वाले हैं, लेकिन एक को प्रॉफिट में हिस्सा पहले मिलेगा और उसको हिस्सा दे दिया जाए, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तब दूसरे को मिलेगा। तो एक को तो प्रेफरेंस दे रहे हैं आप। दूसरी तरफ अब अगर दूसरा जो पार्टनर है उसको बाद में मिले तो वो तो भाई प्रेफरेंशियल नहीं है। तो यहां शेयर भी 2 तरह के हो गए, एक प्रेफरेंशियल राइट रखने वाले, और उनको 2 तरह का प्रेफरेंशियल राइट मिला होता है। पहला प्रेफरेंशियल राइट किस बात का है कि डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट, उनको डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी डिविडेंड से पहले। दूसरा कि जब कंपनी का समापन यानी वाइंडिंग अप होगा तो रिफंड ऑफ कैपिटल, यानी फर्म का लिक्विडेशन हो और किसी पार्टनर को आप पेमेंट करने में प्रेफरेंस दे,
तो वो पार्टनर प्रेफरेंशियल पार्टनर कहला सकता है। तो यहां पे पार्टनर तो नहीं होगा, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चल रहे हैं, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप की बात तो होती नहीं है। कोई भी पूंजी लगाने वाला शेयर होल्डर कहलाता है, और यहां शेयर होल्डर दो तरह के, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। तो जिस शेयर होल्डर को हम कंपनी के समापन के वक्त हम अगर उनको पहले तवज्जो देकर के, वेटेज ज्यादा देकर के, प्रेफरेंस देकर के उनको पहले पूंजी लौटाते तो वो प्रेफरेंस शेयर है। तो ये दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट हो गए, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है इनकी, इनको वोटिंग राइट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं कि पहला, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच देयर इज प्रेफरेंशियल राइट। फर्स्ट, एज टू डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सेकंड, to repayment of capital on the winding up of the company before the capital of equity shareholders is returned. They carry fixed rate of dividend payable out of each year's profit in priority to equity shareholders. In addition to the two rights cited above, preference shares may have additional rights depending upon the terms of the issue, which are either defined in the articles of association or in the prospectus of the company. कुछ उनको और भी राइट हो सकते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव राइट उनको मिल जाती हैं कि भाई अभी इस साल डिविडेंड नहीं मिल पाया तो अगले साल क्यूमुलेट होकर के, एक्यूमुलेट होकर के वो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, उसमें भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है जी। फीचर्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स के? इट हैज प्रेफरेंशियल राइट्स टू डिविडेंड्स एट अ फिक्स्ड रेट। Second, it has cumulative right to dividends. Third, it has preferential rights to get refund of capital before that of equity shares in the case of winding up. Winding up it means कंपनी का समापन, liquidation। और आप लोगों को liquidation भी पढ़ना है सर, इसलिए वहां पर भी ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आप लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज करने जाएंगे तो वहां पे भी ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और उस टाइम पे भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड कब दिया जाना है, कब नहीं दिया जाना, और क्यों पहले दिया जाना है, क्योंकि आपके जहन में ये बात आपके जहन में आराम से रहने वाली है और इजीली आप इस चीज़ को ट्रेस कर लेंगे, तो आपको लिक्विडेशन के टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, ये भी एक बड़ी बात हो गई, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स चुनने में और उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार एक तरह से देखा जाए तो नहीं है। तो वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जस्ट लाइक क्रेडिटर बन के रह गए। इट हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट व्हेन अ स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज बीन पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स और राइट टू प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। सॉरी, देखिए जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनमें एक और बड़ी खास बात होती है, इक्विटी शेयर होल्डर को तभी पूंजी लौटाई जाती है जब कंपनी का समापन हो रहा होता है। उससे पहले कंपनी के लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर को मनी रिफंड नहीं की जाती, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसे नहीं होते। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिफंड किया जा सकता है। ओके, तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिफंड किया जा सकता है तो यहां पे बात अब ये उठती है कि क्या उन्हें, अगर 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है तो क्या उन्हें 110 रुपए दिए जा सकते हैं प्रीमियम? तो जवाब ये मिलता है कि हां, उन्हें प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो सकता है। तो प्रीमियम लेने का भी राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम में, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि लिक्विडेशन आप लोगों ने करना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज आपको करना है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके ग्रुप 2 के सिलेबस में भी ये लिक्विडेशन चैप्टर शामिल है और आगे भी आपको करना होगा लिक्विडेशन का काम। तो वहां पे आपको यह ध्यान रखना होगा कि प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब हो रहा है तो उनको प्रीमियम पे भी दिया जा सकता है, और वो प्रीमियम कहां से लिया जा सकता है उस सेगमेंट पे भी हमने जाना है, उस सेगमेंट पे भी हमने डिटेल डिस्कशन करना है, क्योंकि वो अलग टॉपिक पे डिस्कशन होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप वेट करिए, उसकी भी सारी लेक्चर आपके सामने आने वाली है इसको फिनिश करने के बाद। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के संदर्भ में लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं और अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होंगी, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पे बात आपको सिर्फ यही ध्यान में रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है। अब कोई बच्चा मेरे से यह सवाल कर सकता है कि सर इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको प्रीमियम कहेंगे ही नहीं, उनको सिर्फ रिफंड ऑफ कैपिटल होगा और कंपनी का जो भी सरप्लस अमाउंट बचा होगा आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सबसे पहले डिवेंचर्स को, लीगल एक्सपेंसेस को पे करने के बाद कंपनी के पास जो भी अमाउंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो प्रीमियम का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर नहीं बचा अमाउंट या कम बचा अमाउंट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा, नहीं बचा नहीं मिलेगा, लॉस हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। और उनसे जस्ट पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से जस्ट पहले
कंपनी के पास अगर बचा है अमाउंट सब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन की बात है तो उनको प्रीमियम पे पेमेंट मिलेगा। प्रीमियम देने के बाद और उनका कैपिटल प्लस प्रीमियम रिफंड करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचता है और वो ज्यादा बचता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर होल्डर है और कंपनी के पास 15 लाख रुपए बचे हुए, तो वो 15 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम। इट कैन बी रिडीम्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अब इशू नहीं होते, कंपनी के लाइफ टाइम में उनका रिडेम्पशन हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे बात यह है कि या तो 20 ईयर्स आ जाए पहले या फिर रिडेम्पशन आ जाए पहले। तो मैक्सिमम 20 ईयर्स की बात होती है, उससे ज्यादा की बात नहीं होती। कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन तय है, लाइफ टाइम में रिडेम्पशन हो सकता है। इट कैन बी बॉट और सोल्ड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को भी स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा और बेचा जा सकता है। अब आइए क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। देखिए यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी ऑफ सेवरल टाइप्स। सबसे पहला है बेसिस पे डिविडेंड राइट के बेसिस पे हमने करा, तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या चीज है, इसको भी हम लोगों को समझना है कि क्यूमुलेटिव का मतलब है कि उनका जो डिविडेंड एरियर में रह गया तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव, अगर डिविडेंड नहीं दे पाई कंपनी इस साल तो अगले साल क्यूमुलेट होकर के उनको एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। कन्वर्जन कहने का मतलब यहां पर यह है कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल यानी कि कन्वर्जन नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले। रिडेम्पशन, रिडीमेबल और रिडीमेबल। तो रिडीमेबल तो सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही होते हैं, अब इरिडीमेबल होता नहीं है कोई, क्योंकि मैक्सिमम 20 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, या तो 20 ईयर्स पूरा हो या रिडेम्पशन पहले आ जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए, तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अब नहीं जारी हो सकता। पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब मान लीजिए कि डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट बच जाता है, तो सॉरी सबको लौटाने के बाद, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था आपके सामने कि प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया गया है, इक्विटी शेयर को देना है 10 लाख रुपए और कंपनी के पास 15 लाख रुपए सरप्लस अमाउंट बचे हुए हैं। तो अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो उनको भी प्रोपोर्शनेट पेमेंट, उसमें भी कुछ हिस्सा मिलेगा। और क्या मिलेगा ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करेगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है ये आप जानते हैं, टर्म्स ऑफ इशू क्या होता है ये भी आप जानते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग होगा तो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में भी उनको कुछ राइट मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ। और नॉन पार्टिसिपेटिंग है उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंट टाइप्स थे जिसको कि आप समझ चुके होंगे। अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी है, डिटेल डिस्कशन मैं फटाफट आपको बता देता हूं, हालांकि मैंने बता दिया है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच द एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स एक्यूमुलेट if in any year the company does not earn sufficient profit, dividends on preference shares may not be paid for that year. In case of cumulative preference shares, such unpaid dividend is treated as an arrear. The arrears of dividend will be accumulated. Such accumulated dividend will be payable out of the profits of the subsequent years. Dividend on equity shares can be paid only after the payment of such arrears. पॉइंट शुड बी नोटेड, ये जरूरी चीज है। फिर से मैं कहूंगा कि लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी जानना है। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में रखा हुआ है और डिविडेंड उनका एरियर था, तो लिक्विडेशन के टाइम में उनको एरियर ऑफ डिविडेंड लेने का राइट है। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। और इस पे आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है और बच्चे उस समय इस बात पे ध्यान नहीं देते क्योंकि इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे उनका फोकस नहीं कभी रहा होता है। दैट इज वाई कि वो वहां पे ट्रैप होते थोड़े से। अदरवाइज उनको बताया जाता है कि भाई क्यूमुलेटिव क्या होगा, मतलब क्या है, तो वो याद आता है, तो फिर वो समझ जाते हैं और उसके बाद फिर वो सही करते हैं उस चीज को। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कैन बी पेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ सच एरियर्स। ध्यान देने लायक बात यह है कि उनका एरियर का डिविडेंड दे दें, उसके बाद हम इक्विटी डिविडेंड देंगे, पहले नहीं दे सकते, यही ध्यान रखना है। और ये सारी बातें जो आ रही है थ्योरेटिकल, आपको लिक्विडेशन में भी हेल्प करने वाली है। लिक्विडेशन है ना आप लोगों के सिलेबस में? नहीं है? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नहीं, कैसे होगा लिक्विडेशन? जरा देखिएगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी फाइनल में है। अरे यार लिक्विडेशन अभी बताया था मैंने, कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, बड़ा सीरियसली बताया है मैंने, पूरा लिक्विडेशन बताया, सीएमए के बच्चों को ही बताया।
पूरा लिक्विडेशन बताया आपके ग्रुप 2 में नहीं है? नहीं नो सर। ग्रुप 1 में? तो ग्रुप 1 में तो सवाल ही नहीं उठता। फाइनल में? इसलिए बस देखा नहीं था। फाइनल में है? देखिए तो मे बी, बट है। अभी जब एग्जाम हो रहा था, फाइनल का एग्जाम भी चल रहा था और बोथ ग्रुप का भी एग्जाम चल रहा था, उससे पहले एग्जाम से पहले कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा है, लिक्विडेशन पूरा चैप्टर बताया मैंने, मे बी। चलिए ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो ये सारी बातें आपको तो ध्यान में रखनी ही होगी। लिक्विडेशन है आपका, या आई एम डेड श्योर कि है। अब चाहे इंटरमीडिएट में हो, इंटरमीडिएट सेकंड ग्रुप में नहीं है लिक्विडेशन, ओके नो प्रॉब्लम। Suppose a company has 10,000 10% cumulative preference shares of rupees 100 each. The dividend for 2012-13 and 13-14 has not been paid so far. In 2014-15 company's divisible profit stands at rupees 5 lakh. Point should be noted. जरा देखिएगा, एक practical question type का आ गया आपके सामने। क्या कहा जा रहा है कि suppose a company has 10,000 10% cumulative preference shares of rupees 100 each. इनका dividend कितना होगा जरा बताइए तो, कैलकुलेट करके dividend कितना होगा, एरिया ऑफ डिविडेंड कितना होगा बताइए, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अ कंपनी हैज 10,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. The dividend for 2012-13 and 13-14 has not been paid so far. In 2014-15, company's divisible profit stands at rupees 5 lakh. The 10% cumulative preference shareholders will be paid dividends of rupees 3 lakh, that is for 2012-13, 13-14 and 14-15 before making any payment of dividend to equity shareholders for the year 2014-15. अभी तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। 10,000 था ना, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 है। एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू क्या है, पार वैल्यू 100 रुपए, कितने का हो गया वो, कितने का हो गया, 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख। 1 साल का डिविडेंड एरियर कितना होगा, 1 लाख। 2 साल का कितना हुआ, 3 साल का कितना हुआ, तीसरा साल जो है वो करंट ईयर का है और 2 साल का एरियर है, तो तीनों डिविडेंड देंगे, उसका करंट ईयर का भी और 2 साल एरियर का भी। 2 साल एरियर का 2 लाख होगा और करंट ईयर का 1 लाख होगा, तो 3 लाख होता है डिविडेंड। और वो 3 लाख डिविडेंड जो है आपका, वो 3 लाख डिविडेंड 12-13 का और 13-14 का तो एरियर है और 14-15 का करंट ईयर का है। इज इट क्लियर? कंपनी का डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। कंपनी अब इसको डिविडेंड के रूप में दे सकती है। ओके, तो पहले किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उनको 3 लाख रुपए पहले डिविडेंड, अगर वही क्यूमुलेटिव नहीं होता, नॉन क्यूमुलेटिव होता, तो उनको 1 लाख ही मिलता। 2 लाख एरियर गया हवा, लेकिन क्यूमुलेटिव है तो वो हवा में गया नहीं, वो एरियर्स ऑफ डिविडेंड जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। तो ये 2 साल का जो डिविडेंड एरियर था वो 2 लाख हुआ और करंट ईयर का जो 14-15 का है वो कितना हो जाता है, 1 लाख। तो टोटल कितना हो जाता है, 3 लाख। समझ में आ रही बात, क्लियर हुई बात? प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कंपनीज आर्टिकल। इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा क्योंकि एमसीक्यू भी आपके पास आने वाला है। कंपनी के एमसीक्यूज पे भी आपको फोकस करना है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी के एमसीक्यू पे भी आपको फोकस करना है और इस पॉइंट पे क्वेश्चंस होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द कंपनीज आर्टिकल्स। देखिएगा, एक क्विज भी होगा, ठीक है, और आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब दूसरी बात थी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर हो रहा है? आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ में आया आपको? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन व्हिच एरियर्स ऑफ डिविडेंड डू नॉट accumulated as per articles of association. If there are no profits in any year, the arrears of dividend cannot be claimed in subsequent years. But this type of shareholders, in fact, if the dividend on such shares are not paid by the company during a particular year, the right to claim dividend lapses. खत्म हो जाता है। अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, नहीं दे पाई है कंपनी डिविडेंड करंट ईयर में, तो उसका राइट समाप्त, अगले साल क्यूमुलेट होकर के एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। बात समझ गए? थर्ड है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड।
Non-convertible preference shares which cannot be converted into equity shares are called non-convertible preference shares. Redeemable preference shares कौन है? Redeemable preference shares are those shares which are repayable or redeemable after a fixed period. Irredeemable preference shares which are not redeemable are called irredeemable preference shares. In other words, irredeemable or non-redeemable preference shares are those shares which are not to be redeemed unless the company goes into liquidation. अब ऐसे preference share issue नहीं हो सकते क्योंकि मैक्सिमम 20 इयर्स, ठीक है, लाइफ टाइम देना होता है 20 इयर्स, याद रखिएगा 20 इयर्स, और इरिडीमेबल करके कोई प्रेफरेंस शेयर अब कंपनी जारी नहीं कर सकती। अब 20 इयर्स पूरा हो या कंपनी का लिक्विडेशन हो पहले, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होगा ही होगा। द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू इशू irredeemable preference shares। आगे ना वो बात समझ रहे हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन है? इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आप लोग मत कंफ्यूज करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स are those shares which are entitled to share in the surplus profit of the company which remains after payment to equity shareholders. Thus participating preference shares get a share in surplus profit apart from fixed rate of dividend। मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड 10% था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उनको मिल गया, सरप्लस प्रॉफिट है, तो वहां कोई लिखा है, पहले ही लिखा है कि सरप्लस प्रॉफिट अगर होगा तो उसका 10% लेने का उनको राइट है, सिंपल, तो वो पार्टिसिपेटिंग हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? हाँ, देने के बाद सरप्लस ऑफ प्रॉफिट जो है, सरप्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, उसके ऊपर मिलेगा उनको, ठीक है, इक्विटी डिविडेंड लेने के बाद लिखा है, साफ लिखा है, विच रिमेन्स आफ्टर पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंपल बात, नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज ऑन विच ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड, दे डू नॉट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट। Note, if the articles of association are silent, all preference shares are assumed to be cumulative and non-participating। इस पॉइंट को भी नोट किया। आर्टिकल साइलेंट, आर्टिकल इज साइलेंट, तो प्रेफरेंस शेयर को क्या ट्रीट करना है आपने? क्यूमुलेटिव एंड, ये ध्यान रखना है आपने, जरा ध्यान से देख लीजिए इस बात को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट, ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर अज्यूम्ड टू बी क्यूमुलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी सरप्लस ऑफ प्रॉफिट में उनको राइट तभी मिलेगा जब आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि वो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव, तो क्या कंसीडर करेंगे? क्यूमुलेटिव। यही पॉइंट याद रखना है। देखिए ये बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत मामूली पॉइंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं अभी फिलहाल आपके लिए। ये लिक्विडेशन में ये सारे पॉइंट्स के जो थ्योरेटिकल पॉइंट का जो सिग्निफिकेंस है वो आपको लिक्विडेशन में काम आने वाला है। बट एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, क्योंकि 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू के होते हैं और 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, तो एमसीक्यू में इन सब पॉइंट से ही आपको रेज कर दिया जाएगा क्वेश्चन, आपको लगेगा कि कहां जाएं। तो वैसे सिचुएशन में अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये कंफ्यूजिंग बन जाता है मैटर, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जरा सा भी ट्रैप नहीं करेंगे, आप पूरा का पूरा स्कोर करेंगे, क्योंकि यहां कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होगी। इस पॉइंट को इसलिए नोट करना जरूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या है। अब तो प्रेफरेंस शेयर की बात खत्म हो गई, सारे प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने कर लिए। एक बार जरा रिपीट कर लेते कि कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर हम लोगों ने सीखा अब तक। पहला प्रेफरेंस शेयर कौन सा था? बोलिए जोर जोर से। क्यूमुलेटिव। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव। तीसरा पार्टिसिपेटिंग। चौथा, पांचवा कन्वर्टिबल। छठा, सातवां और आठवां। बेस 4 थे, 4 बेस पे 2 निकला था, 8 हो गया था। कैसे याद रखेंगे कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर? 4 बेस थे, 4 बेस, 4 बेस से चारों बेसिस से 2-2 निकले थे, तो 8 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर हो गए, जिसमें से एक ऐसा है जो अब अलॉड नहीं है। वो कौन सा है? इररिडीमेबल। इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ें।
इक्विटी शेयर के टाइप पे कोई बात नहीं, इक्विटी शेयर बेचारा इक्विटी शेयर है, इसके कोई प्रकार की बात नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर है क्या? सिंपल डेफिनेशन है कहा जाता है कि इक्विटी शेयर आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, बात खत्म। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, बात खत्म है ना। मजेदार डेफिनेशन भाई, हमने नहीं कहा है, ये एक्ट ने कहा है। The holders of such shares are entitled to a dividend or share in the property after the preference shares are paid. So equity shares are common shares. Section 43 subclause A, equity is the risk capital of company. Normally the equity shareholders can control the affairs of the company and have right to all the profits after the preferential dividend has been paid. Hence there will no fixed rate of dividend to be paid to the equity shareholders. This may vary from year to year. Such shareholders may go without any dividend if no profit is made. Therefore, the share capital raised through the equity share is called as risk capital. As per company law, a company can also issue equity shares with differential voting rights and differential dividend rights. ये भी हो सकता है। ये लास्ट वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, इसको जरा ध्यान रखिएगा कि as per company law, a company can also issue equity shares with differential voting rights and differential dividend rights. Differential dividend rights भी हो सकते हैं, differential voting rights भी हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि as per company law, a company can also issue equity shares with differential voting rights and differential dividend rights। देखिए, सच पूछा जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। रिस्क कैपिटल क्यों कहा जा रहा है इनको? रीजन क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ा रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि कंपनी के सारे मटेरियल इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी के कंट्रोल इनके हाथ में होते हैं। तो रियल ओनर तो यही हो गए। कंपनी को लॉस की स्थिति में डिविडेंड, बिना डिविडेंड के भी रहना पड़ सकता है। इनको किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड ना मिले। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि इनको डिविडेंड ज्यादा मिले। इनका कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स होता है, तो रिस्क कम है वहां पे। और ऊपर से कंपनी के वाइंडिंग अप पे, लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले लेने का भी राइट हो जाता है। तो उनको कुछ अगर मजा मिला है तो कुछ सजा भी मिलेगी, इनको कुछ मजा मिला है तो कुछ सजा भी मिलेगी, दोनों में बात बैलेंस हो जाती है। तो जो ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते वो प्रेफरेंस शेयर की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है, कंपनी वहां पे ऑप्शन छोड़ देती है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कि आपको 15% डिविडेंड मिलेगा सर, चलिए जाइए। लेकिन पता चला कि कंपनी हेवी प्रॉफिट अर्न कर रही है, डिविडेंड 20%, 22%, 23% भी दे रही है, तो वैसे में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लग रहा है यार अब मेरे को तो 15% ही मिल रहा है, चलो स्विच करते हैं दूसरी तरफ। 3 साल का पीरियड दिया, तो 3 साल पीरियड बाद हम लोग उसको कन्वर्ट करा सकते थे। 3 साल के पीरियड लैप्स कर गए हैं, अब हमने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लेना है, करा लिया। हो सकता है ऐसा, लेकिन तभी हो सकता है जब ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आपने लिया हो और कंपनी ने अंडर द टर्म्स ऑफ इशू ये बात कही हो कि कन्वर्टिबल है। क्लियर हो गई बात इक्विटी शेयर की? इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकंड, इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज, बहुत ही सिंपल मैटर है। इट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के जीवन काल में इसका कभी भी रीपेमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे कह देते हैं बीच में कि सर बाई बैक होगा तब, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। बाई बैक मतलब समझते हैं क्या होता है? कंपनी अपना शेयर्स वापस ले लेगा, खरीद लेती है ओपन मार्केट से खुद ही, तो क्या ये रिडेम्पशन है? बाई बैक, यू कांट कॉल इट रिडेम्पशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर आपने पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर पढ़ के पक गए होंगे। डायरेक्टर पर कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं करना आपसे कि कितने डायरेक्टर्स होते हैं, वुमेन डायरेक्टर का क्या पोजीशन, ठीक है ना। हाँ, डिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ो यार, उतना मगजमारी नहीं करना मेरे को, लेकिन इतना बात आपको तो जरूर पता होना चाहिए एक लाइन में कि वो डायरेक्टर चुनता कौन है। कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पूछा जाएगा, डिवेंचर होल्डर को भी बुलाया जाएगा, क्रेडिटर से भी पूछ लिया जाएगा भाई डायरेक्टर रख रहे हैं इनको, ठीक रहेगा? ऐसा होता है क्या? नहीं जी। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। क्लियर बात? अब जरा फटाफट से हम लोग जान लें कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंसेस क्या है।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन इतना मजेदार तरीके से पूछा जाएगा, इतना मजेदार तरीके से पूछा जाएगा, यू विल लव द क्वेश्चन। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सही जवाब दें। चलिए, राइट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या राइट है? क्या राइट है? फिक्स्ड रेट का राइट है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले लेने का राइट है। जरा देख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड, दे गेट डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का क्या राइट है? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड एंड दैट टू इफ देयर इज सरप्लस। रेट ऑफ डिविडेंड इनका फिक्स होता है, इनका फिक्स। रिफंड ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिफंड होता है लाइफ टाइम में, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, लेकिन इनका रिफंड ऑफ कैपिटल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन होता है, और वो भी सबसे अंत में, सब खत्म तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं बचा नहीं मिलेगा। क्लियर है? पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करना है। वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होती, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस को छोड़ दे तो, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल राइट है वोट करने का। एरियर ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है क्यूमुलेटिव होने की दशा में, और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव नहीं लिखा हुआ है तो क्या मानते हैं? क्यूमुलेटिव। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग तो कब मानते हैं? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा तभी, अदरवाइज नहीं। वेरी गुड। तो एरियर ऑफ डिविडेंड इनका तो एक्यूमुलेट हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का होता है क्या? एरियर ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट होकर के अगले साल मिल जाएगा आपको डिविडेंड, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट का मतलब क्या होता है जानते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट मतलब पसीना। इंप्लॉइज पसीना बहाते हैं कंपनी के लिए, कंपनी रिवार्ड के रूप में उनको कुछ शेयर्स देती है, लेकिन कैसे? फ्री में नहीं, फोकट में नहीं, कम पैसे में, डिस्काउंट करके। उनका प्राइस अलग होगा, मार्केट प्राइस कुछ और होता है। ठीक है, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कुछ और होता है, नॉमिनल वैल्यू कुछ और होता है, और एम्प्लॉइज को जो देने का जो वैल्यू प्राइस जो फिक्स किया जाता है कंपनी की तरफ से वो कुछ और होता है। तो आपको ये पढ़ना है, स्वेट इक्विटी शेयर की एंट्रीज आपको करनी है, हम लोग इस पे जाएंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज to the corporate life of the company. Hence, sweat shares are reward to the employees or directors for sweating for the growth of the company. साफ लिखा है। Sweat equity shares are issued to the employees, directors at a discount. They may be issued even for a consideration other than cash for providing know-how or making available rights to use intellectual property. मतलब समझ रहे? Intellectual property rights. कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? भाई साहब, एम्प्लॉय काम कर रहा है आपके यहाँ, मैनेजर काम कर रहा है आपके यहाँ, कुछ इंजीनियर्स भी काम कर सकते हैं आपके यहाँ, उनके पास टेक्निकल नो हाउ है, स्पेशल स्किल है उनके पास, नहीं हो सकता क्या? और यदि ऐसा है और कंपनी उनको रिवार्ड के रूप में कुछ शेयर्स दे रही है, तो क्या कोई कंसिडरेशन ले रही है कंपनी? वहां पे स्पेशल स्किल आपके पास है, नहीं दे सकते आप। एम्प्लॉई है भाई, आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, लेकिन आप साइंटिस्ट भी हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी में आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और आप टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं दिन रात एक करके, और आपके पास जो स्पेशल स्किल है उससे आपने डेवलप कर दिया कंपनी के लिए इंजन, और वो इंजन कैसे चलेगी? सोलर बैटरी से। ठीक है, तो आप कंपनी के लिए कर रहे हैं ना, टेक्निकल नो हाउ आपके पास है ना, कंपनी आपको शेयर दे रही है, दे सकती है बिना कंसिडरेशन के। तो देखिए, कंसिडरेशन एक्चुअली है वहां पे। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू द एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब यहां तो कुछ पैसा लेंगे लेकिन कम पे देंगे। दे मे बी इशूड इवन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहने का मतलब वही हुआ, आपके पास कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, आपके पास स्किल है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, और आप उसको यूज करने का राइट कंपनी को दे रहे हैं, और बदले में आप क्या ले रहे हैं?
शेयर्स ले रहे हैं, सिंपल तो बात है, समझ में आई बात या नहीं? These shares can be issued by company only after 1 year has elapsed since it has commenced its business. This 1 year is called lock-in period. क्लियर होगी बात? बोलो भाई, क्लियर है? Conditions according to section 54 of the Indian Companies Act 2013, a companies may issue sweat shares if the following conditions are fully fulfilled, namely, अब इस पॉइंट को आपको जानना होगा पूरा का पूरा समझना होगा, क्योंकि आपको इस पर अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। पहला, द इशू इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी। फर्स्ट पॉइंट, स्वेट इक्विटी कब जारी कर सकती है कंपनी? पहला तो कि 1 ईयर लैप्स होना चाहिए कंपनी का। दूसरा, द इशू इज ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी। रेजोल्यूशन वर्ड आपने सीखा है या नहीं सीखा है? कंपनीज लॉ पढ़े होगे आप लोग तो। रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन सीखा है या नहीं सीखा है? हाँ, तो स्पेशल रेजोल्यूशन कब पारित होता है आपको पता है? कौन पारित करता है पता है? एजीएम होता है। द रेजोल्यूशन शुड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज टू हुम सच शेयर्स आर टू बी इशूड। दूसरा पॉइंट है कि रेजोल्यूशन में क्या स्पेसिफाई होना चाहिए? पहला तो स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करके ही ये इशू होगा, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है ना? स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे इशू नहीं होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करना होगा। दूसरा कंडीशन कि रेजोल्यूशन में क्या स्पेसिफाई होना चाहिए? क्या स्पेसिफाई होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा, करंट मार्केट प्राइस क्या है उस शेयर की, कंसिडरेशन आप क्या ले रहे हो, ठीक है, इफ एनी अगर ले रहे हो तो, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय, मतलब किस ग्रुप को आप दे रहे हो, एम्प्लॉइज को दे रहे हो कि डायरेक्टर को दे रहे हो? डायरेक्टर में भी दे रहे हो तो किस प्रकार के डायरेक्टर को दे रहे हो? बात समझ रहे हो ना? To whom such shares are to be issued. Third point, not less than 1 year has elapsed. ये तो पहला ही पॉइंट था। Not less than 1 year has elapsed since the date of commencement of business, and where the sweat equity shares of a company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI. मतलब SEBI गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं तो कितने पॉइंट्स हुए? 4 पॉइंट्स हुए। क्लियर है चारों पॉइंट? पहला पॉइंट हम लोग इसी को ले लेंगे कि 1 ईयर होना चाहिए एटलीस्ट। दूसरा क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा, मेंशन क्या होना चाहिए रेजोल्यूशन में कि कंसिडरेशन है क्या, नंबर ऑफ शेयर क्या है, क्लास ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर कौन कौन से हैं, ये सारी बातें मेंशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन है या नहीं, अगर कंसिडरेशन है तो कौन सा कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन होगा, मार्केट प्राइस क्या है शेयर की, मार्केट प्राइस है, जरा ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल वैल्यू नहीं, मार्केट प्राइस। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? अ कंपनी यूजुअली raises its capital in the form of shares called share capital and the debentures debt capital। दो तरह से कैपिटल रेज करती है कंपनी, एक तो डेट कैपिटल और दूसरा कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल हम लोग दोनों जानेंगे, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर भी आपको पढ़ना है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी आपको पढ़ना है। हेंस दिस चैप्टर डील्स विद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज। अभी हम लोग सिर्फ बात किस बात में करेंगे? शेयर कैपिटल के बारे में। डिवेंचर वाली बात हम लोग लेटर ऑन करेंगे। शेयर कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? Share capital refers to the capital raised by a company by the issue of shares as the capital of the company is divided into shares. The capital of the company is called share capital. ये तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसका प्लग दो ना, प्लग। हाँ, क्लियर है ये पॉइंट? डिक्शनरी, देखिए हम लोग तो वैसे जनरली डिक्शनरी मीनिंग को लेते नहीं है, हम लोगों को अकाउंटिंग मीनिंग लेनी होती है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेनी होती। लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग, शेयर कैपिटल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ accounting, share capital is that part of the finance of a company received from its owners, that is its members or shareholders, in exchange for shares. According to section 43 of the Companies Act 2013, the share capital of a company is limited by shares may be of two kinds, namely first equity shares
and second preference shares. Nature of the share capital: in case of company, capital means share capital because in the Companies Act the word capital is qualified by the word share. The person who contribute capital to the company are known as shareholder. The number of shareholders are very large, so separate capital account cannot be opened for each one of them. Point should be noted. Size of share capital depends on the size of the company. Hence there is one consolidated capital account called share capital account. उसको खोला जाता है. सबका नाम से अलग अलग अकाउंट नहीं खोला जा सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट खोलते हैं. अब देखिए टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. यहां आप देख पा रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या है. ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल. ओके, ऑथोराइज कैपिटल किसको कहेंगे? क्लियर हो गई बात? ऑथोराइज कैपिटल किसको कहेंगे? जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, तो इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, इसको ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, और इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. तो रजिस्टर्ड कैपिटल क्या कहते हैं? कंपनीज एक्ट 2013. ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मीन सच कैपिटल which is, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, which is authorized by the memorandum of company to be the maximum amount of share capital of the company. Thus authorized capital is the maximum amount of capital stated in the memorandum of association which the company is authorized to raise. This capital is also called as registered capital. अब एग्जाम्पल लिया है, रत्नेश एंड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹10 lakh डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each. Here authorized capital is ₹10 lakh. Authorized capital can be increased or decreased by following prescribed procedure. Authorized capital can be increased or decreased by following prescribed procedure. अब प्रोसीडियर क्या, वो तो दिया नहीं यहाँ पे, वो आपको समझना होगा कि ऑथोराइज कैपिटल में चेंज कैसे हो सकता है. पढ़ा है आपने कंपनी लॉ में कि इंक्रीज करना है तो क्या प्रोविजन है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई रोल है यहां पे? मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल है यहां पे? गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई इंटीमेशन, एमओए में चूंकि चेंज कर रहे हैं आप, एमओए के क्लॉज में आप चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि एमओए के क्लॉज नंबर 1 में ही आ जाता है कैपिटल क्लॉज, और उसी में आपका ऑथोराइज कैपिटल होता है, और आप उसी को चेंज कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि व्हाट आर द लीगल प्रोविजन विच मस्ट बी फॉलोड व्हेन अ कंपनी वांट टू, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस which must be followed, what are the legal provisions which must be followed when a company want to change, when a company want to change its capital clause of MOA, its capital clause of MOA. अब चेंज का मतलब इंक्रीज भी हुआ, डिक्रीज भी हुआ. MOA में कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड कैपिटल. समझ रहे हैं? और उसमें चेंज करना चाह रही है कंपनी, तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे. आप लोग इसका लीगल प्रोविजन लिखेंगे. ओके, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल में ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया उन लीगल प्रोविजंस को. ओके, बट आप लोगों ने देखना है, आप लोगों की ज़रूरत है ये. इशूड कैपिटल, इसका मतलब क्या है? हमने अभी अभी बताया आपको कि इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है. जो भी शेयर्स पब्लिक के बीच में गए हों, वेंडर को दिए गए हों, किसी भी प्रकार से कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल का वो पोर्शन जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन दे दिया है किसी के हाथ में, और कंपनी अपना कैपिटल क्रिएट करा हुआ मानती है, वो इशूड कैपिटल. ऑथोराइज नहीं है. तो issued capital means such capital as the company issues from time to time for subscription
Issued capital is a part of authorized capital which is offered to the public for subscription. For example, if Ratnesh and company offers to the public 9,000 shares of rupees 100 each, its issued capital will be 9 lakh. In fact, issued capital means the nominal value of shares issued by the company for cash के लिए, for consideration other than cash, promoters of a company, vendors of assets. Note, it should be noted that issued capital cannot exceed the company's authorized capital. उससे ज्यादा issued capital नहीं हो सकता. Authorized capital और issued capital में difference, क्या difference है इसको भी समझना है आपने. Meaning, authorized capital की meaning क्या है? It is the amount with which a company is registered. It is the maximum amount of share capital. It is that part of authorized capital which is issued to the public for subscription. Disclosure. It is required to be disclosed in memorandum of association and it is not required to be disclosed in memorandum. Possible ही नहीं है memorandum में issued capital disclose करने का. Balance sheet में भले ही disclose होता है. Determination. It is determined on the basis of present and future requirements. कंपनी की जो फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए कंपनी को डिसाइड करना होता है ऑथोराइज कैपिटल कितना रखना है उसने, क्योंकि इसमें चेंज आसानी से नहीं होता. इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ती है कैपिटल में चेंज करने के लिए. इंक्रीज करना है तो आसान नहीं है इसको, क्योंकि सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये डिसीजन कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल कितना होना चाहिए, कितने कैपिटल से रजिस्टर करवाना है, कंपनी के लाइफ टाइम में कितना कैपिटल इस्तेमाल होगा, तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होता है. लेकिन इट इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट कि हमें कितना इशू करना है. तो हम देख लें कि भाई हमारा रिक्वायरमेंट अभी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम शेयर जारी कर देंगे. सही बात है. क्वांटिटी ऑथोराइज कैपिटल कैन एक्सीड्स इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड ऑथोराइज्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है सर? कंपनीज एक्ट इसके बारे में 2013 की क्या कहती है? सेक्शन 2 में ही है इसका भी डेफिनेशन. सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी. दस इट इज दैट पार्ट ऑफ issued or authorized capital which have been taken up or subscribed by the public. For example, if applications are received for 8,000 shares of rupees 100 each and duly allotted, subscribed capital will be 8 lakh. The balance of issued capital not subscribed by the public is called the unsubscribed capital. यहां पे क्लियर हुई बात? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा. कंपनी ने कितना इशू किया था, thus it is that part of issued or authorized capital which have been taken up or subscribed by the public. Taken up मतलब ले लिया गया, subscribed. ठीक है. For example, if the applications are received for 8,000 shares of rupees 100 each, ठीक है, और कंपनी मान लो 9,000 जारी की थी, तो सब्सक्राइब 9,000 नहीं होगा. सब्सक्राइब कितना हुआ? 8,000 ही होगा. मान लो कंपनी ने 10,000 जारी किया था, ज्यादा जारी किया था, ऑफर किया था कंपनी ने कि 10,000 शेयर खरीदोगे, लेकिन रिस्पॉन्स मिला 8,000 के लिए ही क्लोजर डेट तक, तो 8,000 ही होगा. बात समझ में आ गई? कॉल्ड अप कैपिटल. It means such part of subscribed capital which has been called for payment. ठीक है, यहां भी सेक्शन 2 का 15 है क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, ₹80 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप ऑन 8,000 शेयर्स. अभी 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, लेकिन कंपनी ने उस पर ₹80 ही मांगा है, तो कितना होगा? 8,000 into 80, 6,40,000. यही होगा. जनरली द कंपनी डज नॉट डिमांड फॉर द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर एट ए टाइम. The shareholder is generally required to pay it in 2 or 3 installments which are called calls. हालांकि ये बात प्रैक्टिकल नहीं है. आप अभी वर्तमान में शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे ओपन मार्केट से, तो आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं. पूरा का पूरा लमसम का ही कहानी. ठीक है, लेकिन अब है तो है, प्रोविजन है, कंपनी ऐसा चाहे तो कर सकती है और करती भी है कुछ कंपनियां. Paid up capital क्या? It is that part of called up capital which the company has actually received from the shareholders according to section 2. यहाँ भी clause 64 है of the Companies Act 2013. Paid up share capital or share capital. Paid up means aggregate amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up in the respect of shares issued. अभी था कि ₹80 पर शेयर मांगे गए, 8,000 शेयर्स पे 6,40,000 हुए. उसमें कोई भी कैल्सिन एरियर हुआ है उसको माइनस कर देंगे पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप में से कैल्सिन एरियर घटा दो तो क्या आ जाएगा? पेड अप. जो मिला वो पेड अप है.
अब देयरफॉर पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू द कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, यही बात है। द सम विच इज स्टिल टू बी पेड इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। For example, when rupees 80 per share has been called up on 8,000 shares and the money is duly received with the exception of one shareholder holding 100 share on first call of rupees 20 each, the paid up capital will be as under 8,000 share of rupees 100 each, rupees 80 per share called up is equal to 640. Clear है? Less calls in area 100 shares rupees 20 यानी 2,000, so 6,38,000 is will be the paid up capital. कोई दिक्कत? Paid up capital is the real capital of the company. वही तो कैपिटल है। अनकॉल्ड कैपिटल, अब 20 रुपए नहीं मांगे तो वो अनकॉल्ड कैपिटल है। जो 20 रुपीज नहीं मांगा है कंपनी अभी तक कंपनी ने, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे। इट इज अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इट इज दस डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट एग्जाम में, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। अ लिमिटेड कंपनी में डिटरमाइन दैट एनी पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इट हैपेंस व्हेन अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास्ड। इट कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप द अनकॉल्ड कैपिटल, सो ए मार्क्ड इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब क्या है कि कंपनी ने 20 रुपए अभी तक नहीं मांगा है। अब 20 रुपए में से कंपनी ये कहती है कि हमने 10 रुपए या 5 रुपए या 15 रुपए या पूरे 20 रुपए तब मांगा जाएगा जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। ओके, दैट वुड बी कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। अब कंपनी का कहना है कि नहीं, 5 रुपए कंपनी तब मांगेगी जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। मतलब कंपनी उस पैसे को तब मांगेगी शेयर होल्डर से 5 रुपए जब लिक्विडेशन कंपनी का होगा। और उस टाइम पे अगर शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए वो 5 रुपए, बड़ा मजेदार किस्सा है सर, समझ लीजिए। 100 रुपए का शेयर था, आप 95 चुका चुके हो, कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, ध्यान से समझ लो बात को। कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, रिजर्व कैपिटल था 95 पेडअप था, आपने 95 ऑलरेडी दिया हुआ है। आप ये सोच रहे हो कि अब तो कंपनी का बाजा बजने वाला है, क्या पता मिले ना मिले। अब वो 5 रुपये भी दें, 1000 शेयर है, 1000 गुना 5 यानी 5000 रुपये देने हैं। 10,000 शेयर मेरे पास है, 10,000 गुना 5 50,000 देने, ना मिले कुछ पैसे तो आप नहीं भेजते, ठीक। और कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो कंपनी आपको डिस्कार्ड कर देगी, आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। मान लो पर शेयर रिफंड हो रहा था 10 रुपया, तो आपको 10 रुपया पर शेयर जो रिफंड हो रहा था आपको नहीं मिलने वाला, 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप यहां पे क्या किए, डिफॉल्ट किए। डिफॉल्ट के केस में क्या होता था, याद करिए, फॉरफीचर होता था कि नहीं होता था। और आप कंपनी के मालिक हैं और वो पैसा जो रोका गया था वो किस समय के लिए रोका गया था कि भाई लिक्विडेशन पे आपको देना, और आप उसी समय डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आप तो सारा कॉन्ट्रैक्चुअल राइट तोड़ दिए ना। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट तो आपने तोड़ दिया ना, तो कंपनी आपको पैसे नहीं लौटाएगी। ऐसा होता है, याद रखिएगा। Reserve capital, a limited company may determine that any portion of uncalled capital shall not be called up during the lifetime of the company. It happens when a special resolution to this effect is passed. It can be called up only in the event of winding up the uncalled capital, so a marked is known as reserve capital. Section 65 of the Companies Act 2013. Unissued capital क्या है? Unissued, that portion of authorized capital which has not yet been issued is called unissued capital. The company has the right to issue this capital later on when it requires more funds. Simple सी बात है। For convenience, the different types of capital may be shown through the following chart. Authorized capital देखा आपने, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से।
और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम में एमओए में इसकी जिक्र होगी कि ऑथोराइज कैपिटल क्या होगा। अब इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट बनता है, अनइशूड इधर बेचारा रह गया। ठीक है, अभी इशू ही नहीं हुआ। कंपनी ने 10,000 शेयर से रजिस्टर करवाया, 8,000 शेयर को जारी करा, उसमें से 8,000 में से 6,000 शेयर सब्सक्राइब कर दिए गए, तो 2,000 अनसब्सक्राइब्ड हो गए। अब कॉल्ड अप, तो 6,000 में 80 रुपये मांगे गए कॉल्ड अप, अब उसमें कॉल सिनेरियर हुआ, घटा दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा, पेड अप। ठीक है, अनकॉल्ड अप 20 रुपये जो बचे हुए थे, 100 में से 80 ही मांगा था कंपनी ने, अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब ये अनकॉल्ड अप क्या है, अनरिजर्व कैपिटल, जो हम मांगेंगे भाई फ्यूचर में, कंपनी के समापन से पहले मांग लेंगे, और रिजर्व कैपिटल वो जो हम कंपनी के लिक्विडेशन पे मांगेंगे। लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप तो समझ गए होंगे सारी बातों को। इज इट क्लियर? कैपिटल रिजर्व क्या होता है सर? कैपिटल रिजर्व भी कोई चीज है? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जब कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होता है तो एक रिजर्व क्रिएट करना होता है, मैंडेटरी रिजर्व है ये, दैट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट से, रेवेन्यू प्रॉफिट से नहीं, कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व which are made out of capital profit. The profit which are not earned by the company in the normal course of the business are capital profit. This reserve will not be available for distribution as dividend to the capital reserve is shown in the liability side of the balance sheet under the head reserve and surplus. तो ये चीज कैश फ्लो में भी काम आएगा। कैश फ्लो जब आप बनाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व भी होता है, और रिजर्व एंड सरप्लस में आपका रेवेन्यू प्रॉफिट भी होगा। तो हेड में से आपको क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट है। कैश फ्लो आप लोगों का तो ग्रुप 2 में है या नहीं है? अब कैपिटल प्रॉफिट होते कौन कौन से हैं जिससे कि कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं है ये कंपनी का। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स करके कंपनी ने गेन किया है, तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ करेंगे? कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो सकता है इससे। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। समझ रहे होंगे बात को? अच्छा ये बताइए कि ये जो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व का यूज कहां होगा, बता सकते हो आप? अरे सिंपल सा तो क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैपिटल रिजर्व यू हैव क्रिएटेड, वेयर इट विल बी यूज्ड और इट कैन बी यूज्ड। डिविडेंड के रूप में तो नहीं बांट सकते आप इसको, बोनस के रूप में। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस के रूप में दे दिया आप? नहीं। भाई साहब आपको कैपिटल रिजर्व है, आपके पास कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, तो कभी कैपिटल लॉस भी तो हो सकता है। जब वो कैपिटल लॉस होगा तो उसको रिकवर। सबसे पहला तो वही है ना कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, कैपिटल लॉस है कुछ, तो उसको राइट ऑफ करने में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल हो सकता है क्या कैपिटल लॉस को भरपाई करने में? नहीं, कभी नहीं। कंपनी के बैलेंस शीट में भी वो नहीं होता, लेकिन कैपिटल रिजर्व होता है, रिजर्व कैपिटल नहीं होता। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं सामने में, देख लीजिए। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है कि अनकॉल्ड कैपिटल है और जो लिक्विडेशन पर्पस पे ही यूज होगा। कैपिटल रिजर्व क्या है? विच आर जेनरेटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, नेचर क्या है? ये कैपिटल का पोर्शन है रिजर्व कैपिटल, लेकिन कैपिटल रिजर्व किसका पोर्शन है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर, कैपिटल पूंजीगत लाभ जो होती हैं, जैसे प्रीमियम। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट भी हो सकता है। डिस्क्लोजर,
बैलेंस शीट में तो ये डिस्क्लोज नहीं होगा रिजर्व कैपिटल, लेकिन कैपिटल रिजर्व शो होगा और किस हेड में शो होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। शेड्यूल 3 आप लोगों को करना है। एप्लीकेशन कहां अप्लाई होगा, इट इज यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। अभी अभी बताया आपको ये पॉइंट। मैंडेटरी क्या है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। कानून ये नहीं कहता, कंपनी लॉ ये नहीं कहता कि आपको रिजर्व कैपिटल रखना ही रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो ये मैंडेटरी है। इफ देयर आर कैपिटल प्रॉफिट इट हैज टू बी क्रिएटेड, ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स क्रिएशन रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी अभी आपने बताया था कि जब कंपनी वैसा 20 रुपए रोक रही थी तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करना पड़ेगा। किसके लिए, अनकॉल्ड पोर्शन जो कैपिटल का है, जिसको कि रिजर्व कैपिटल बना के रखेगी कंपनी, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी? बोलो, क्लियर हो गई बात? अब शेयर्स कैसे इशू किए जा सकते हैं ये आप जानेंगे। ओके, नो हाउ शेयर्स कैन बी इशूड, ये आप जानेंगे अभी अभी। ओके, issue of shares, price of shares. When a public limited company is incorporated, it takes necessary steps to obtain the required capital. For this purpose, the company issues a prospectus. Prospectus क्या वर्ड है, आप लोग सुना है कभी? हिंदी में क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस को? किसी को पता है? नहीं पता? तुरंत मोबाइल में सर्च करें। प्रविवरण हिंदी में बोलते हैं, प्रविवरण यानी कंपनी का पूरा विवरण। हाँ, न सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो बल्कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी बताने वाला विवरण। विवरण है, समझ लो। प्रोस्पेक्टस मतलब विवरण है एक प्रकार का, ठीक है ना। तो कंपनी को अपना बताना पड़ता है भाई। आप हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आप हमारे कंपनी में इन्वेस्टर हो, शेयर खरीदोगे, पूंजी लगाओगे, रिस्क लोगे, तो तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहोगे क्या? तो कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना पब्लिक को। ऐसे ही थोड़ी आप शेयर खरीद लोगे किसी कंपनी का। बोलो आंख बंद करके शेयर खरीदोगे, आंख बंद शेयर खरीदा, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। तो उसके लिए क्या है कि व्हेन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, उनका यानी कि इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इट टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कैपिटल। पहला काम क्या है कि फॉर दिस पर्पस द कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स। The terms and conditions of the issue of shares are stated in the prospectus. Shares can be issued at par, at premium or at discount. लेकिन डिस्काउंट के बारे में कुछ लोचा है, वो हम लोग जानेंगे। तो at par का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था मान लो 20 लाख रुपए के कैपिटल से, 20 लाख रुपए, और वो 2 लाख हिस्सों में बटा हुआ था। 2 लाख हिस्सों में बटा हुआ था। तो एक हिस्से की कीमत क्या हुई? 10 रुपए। तो 10 रुपए के शेयर अगर 10 रुपए पर ही इशू किए जा रहे हैं तो कहा जाएगा पार वैल्यू, उसी को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। अगर 10 रुपए वाले शेयर 10 + 10 पे इशू किए जा रहे हो, 10 + 5 पे इशू किए जा रहे हो, 10 + 100 पे इशू किए जा रहे हो, तो वो 10 प्लस जो भी आ रहा हो, प्रीमियम के लिए कोई लिमिट नहीं। लेकिन जहां तक डिस्काउंट की बात है तो डिस्काउंट के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आईपीओ डिस्काउंट पे तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जहां पर कि शेयर्स डिस्काउंट पे जारी किए जा सकते हैं। तो अगर उसका पार वैल्यू यानी कि 10 रुपए वाला जो वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने, 10 रुपए से कम पर अगर जारी की है कंपनी ने शेयर्स को, तो उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो इसको जानेंगे हम लोग। When shares are issued at their face value, they are said to be issued at par. For example, when shares of ₹7 or 10 each face valued are issued at 10 only, or shares of 100 each at 100 only, these are to be said issued at par. That is face value. Premium सेक्शन 52 में बात कही गई है, when shares are issued at price above their nominal or face value, they are said to be issued at premium. For example, when shares of ₹100 face value are issued at 110, it is said that the shares have been issued at a premium. Hence 110
minus 100 is premium. Premium is capital profit of the company. This provision has been replaced by Companies Amendment Act 2017. Shares issued at discount. When shares are issued at less than their face value or nominal value, they are said to be issued at discount. The amount by which the market price or issue price of share is below its nominal face value is called discount on issue of shares. For example, when a 10 share is issued at 9 or a share of rupees 100 is issued at 395, it is said 95 होना चाहिए, यहाँ पे 395 नहीं होना चाहिए. A correction is required. Okay. रुपीस भी मेंशन होना चाहिए. Okay. It is said to be at discount of 1 or 10% and rupees 5 or 5% respectively. अभी क्लियर है? When shares are issued at discount, the company incurs loss. So this discount is debited. Discount on issue of share account. Normally a company cannot issue shares at discount. अब जरा देखिएगा, डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, आईपीओ तो नहीं आ सकता है डिस्काउंट पे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक्सेप्ट as provided in section 54, a company shall not issue shares at discount. The only share that can be issued at discount are sweat equity shares. Sweat equity share पर हम लोगों ने डिस्कशन किया अभी. Wherein shares are issued to employees or directors in lieu of their service under section 54 of the Companies Act 2013. तो वो शेयर डिस्काउंट पे जा सकते हैं. एक और कंडीशन है जब शेयर डिस्काउंट पे जारी किए जा सकते हैं, और जारी नहीं, वो पुनः जारी करना होता है, यानी री इशू करना कहलाता है. जब हम किसी शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं तो उसको हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं. ठीक है, रीजन वहां पे है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है डिस्काउंट पे जारी करने का, क्योंकि कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुकी होती है. तो जितना अमाउंट वो ऑब्टेन कर चुकी होती है, रिसीव कर चुकी होती है, तो कंपनी उतना अमाउंट डिस्काउंट दे सकती है. इज इट क्लियर? Issue and allotment. A public company can raise its capital whenever it needs this same formation, further expansion or diversification. The company has various options to raise capital by issue of shares. These options are private placement of shares. Private placement of shares जानते हैं क्या होता है? कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर रही है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रही है. ठीक है, हाँ, वो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है शेयर्स को, मतलब इंडिविजुअल हाथों में दे दे रही है शेयर्स को, डायरेक्टली अलॉट कर दे रही है उनको. जैसे म्यूचुअल फंड वाले, LIC, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, इनको कंपनियां शेयर्स वैसे भी प्राइवेटली प्लेस कर सकती है और करती है और फंड रेज कर लेती है, उनको IPO भी नहीं लाना पड़ता. ठीक है. पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर तो भाई पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है. एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP इसको कहते हैं, और स्कीम भी उसको कहा जाता है. राइट इशू. राइट इशू क्या है जानते हैं? कि आप पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था 1 लाख इक्विटी शेयर्स से, कंपनी उसमें से 50,000 इक्विटी शेयर जारी कर चुकी थी, अभी 20,000 जारी करना चाहती है, तो आपको वो देती है राइट. राइट क्या देती भाई? हमारे जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको राइट है, पहला हक आपको है. ठीक है, तो राइट इशू से रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलने वाला है. आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. ठीक है, और राइट इशू के संदर्भ में आपको जर्नल एंट्रीज समझनी है, और आपको राइट है लेने का. आप चाहें तो उस राइट को आप यूज करें, या फिर आप चाहें तो उस राइट को किसी और को बेच दें, ऐसा भी होता है. बोनस इशू. बोनस इशू क्या है? बोनस इशू भी पुराने शेयर होल्डर्स को ही मिलता है. कंपनी को प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता रहा, अब कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे दे.
ठीक है, तो बोनस शेयर दे दे तो उसमें कोई ना कोई रेशियो होता है कि कंपनी का शेयर पहले से 5 लाख शेयर जारी किया हुआ था, अब कंपनी हर 5 शेयर पे 2 शेयर बोनस के रूप में जारी करना चाहती है। तो जो भी 5 शेयर रखे हुए हैं, यानी कंपनी 2 लाख शेयर बोनस के रूप में जारी करना चाहती है, कर सकती है कंपनी, लेकिन कंपनी को बदले में कुछ मिलता नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट PPS, a public company usually raise money from public at large. Okay, there may be instances where a public company may also go for private placement of shares. An issue of shares which is not public issue but offered to a selected group of persons, which may be 50 or such higher number as may be fixed in a financial year, is called private placement of shares. Thus, private placement refers to allotment of shares to a selected group of persons. It is permitted by the Indian Companies Act. Condition क्या है private placement की? Private placement of shares is a preferential issue, hence it is governed by the SEBI guidelines. ऐसे ही चुपचाप आप नहीं दे सकते, SEBI guideline फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को आप शेयर्स जारी करते हैं बल्क में, कंपनी का शेयर, तो सेबी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर इज द सेम एज इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स बिकॉज दे आर इशूड फॉर अ कंसिडरेशन। हमें क्या फर्क पड़ता है? पब्लिक से पैसा आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करें या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करें, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दें, या फिर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करके ये फंड रेज करें या हम पब्लिक इशू करके ये फंड रेज करें, एंट्री तो वही होगी। कंपनी शुड अलॉट दीज शेयर्स विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अदर पॉइंट्स रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स at times a broker or an underwriter may find person to whom shares may be placed. There is no need to issue prospectus in such a case. अभी भी बताया ना कि प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। Such shares can be issued on conversion of debentures and also for a consideration other than cash. That is, they can be issued in exchange of some fixed assets to a selected group of people. ऐसा भी तो हो सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट उसको भी तो कहेंगे सर। आपकी कंपनी खरीद रही है नोएडा की किसी कंपनी से प्लांट एंड मशीनरी आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, अब उनको आपने पेमेंट नहीं करा, बदले में आप शेयर जारी कर दे रहे, तो एक तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो हुआ। नहीं समझे बात को? Public subscription of shares. When a company offers its shares to general public to subscribe, it is called public issue of shares or public subscription of shares. It can be made by a public company after complying with the prescribed legal requirements. Procedure for issue of shares for cash. Following steps are to be followed by a public company for issuing shares to the public. To issue prospectus, पहले prospectus जारी करना पड़ेगा, then application receive करना है आपने, third allotment करना है, fourth call करना है। ये काम आप लोग करते हैं, लेकिन आप इसके लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो एंट्री करेंगे। बात समझ गए? कॉल ड्यू कराएंगे तो एंट्री करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे। बात समझ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, company issues prospectus to provide information related to company to public according to section 270 of the Companies Act. Prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes the red herring prospectus. Red herring prospectus आप लोगों ने पढ़ा है ना? Red herring prospectus होता है क्या, बता सकते हो? तो पढ़ा है बस। हाँ, मोबाइल लिखिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस,
or any notice, circular, advertisement or other documents of inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of the body corporate. It contains information like name and registered address of the company, objects of the company, names and addresses of director, terms of the issue, along with the opening and closing date of issue, names and branches of scheduled banks where the application money is to be deposited, etc. It also contains the information about the profitability and financial soundness of the company. It also contains the consent of SEBI, Securities and Exchange Board of India, authorized and issued capital and number of shares offered. क्या कंटेंट होंगे प्रोस्पेक्टस के, उसकी बात की गई है कि प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए. प्रोस्पेक्टस में गलत सूचना होने पर क्या, हाँ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? बोलो ना. It is a preliminary registration document that is filed with SEBI in case of book building issue which does not have details of either price or number of shares being offered or the amount of issue. So जिसमें प्राइस नहीं लिखा होता, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा है, कितना इशू करना है, वो रेड हेडिंग में आएगा. अब क्या करना है, एप्लीकेशन रिसीव करना है. उसके बाद देखिए इधर, whenever shares are to be issued by a company, an advertisement in a leading newspaper is given for information of the general public. Those who are interested in purchasing the shares may get an application form along with a copy of prospectus. The application duly filled in along with application money, account paycheck is deposited with the prescribed scheduled bank as mentioned in the advertisement. The banker will send the application money to the company along with the list of applicants. The amount payable by applicants with application is called application money. It needs to be mentioned that application is an offer by an investor to subscribe for a specified number of shares in a company. ये बात आप लोगों को पता है कि कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस जारी करके आपसे एप्लीकेशन मांगती है तो वो ऑफर नहीं कर रही है, इन्विटेशन टू ऑफर कर रही है. शेयर होल्डर एप्लीकेशन देकर के ऑफर कर रहा होता है. क्लियर होगी बात. दूसरा पॉइंट, द एक्सेप्टेंस ऑफ दीज ऑफर बाय द कंपनी इज द अलॉटमेंट. यानी अलॉटमेंट क्या है, एक लाइन में अगर बोलें तो अलॉटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी टू इट्स prospective investors or shareholders. तो इसीलिए acceptance of these offers by the company is the allotment. The directors are at liberty to call any amount by way of the application money as per section 39 clause 2. The application money shall not be less than 5% of the nominal value of shares. However, as per SEBI guideline, the minimum application money payable must be at least 25% of the issue price of each shares. प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको. After the closing date, all applications received from the public are forwarded by prescribed banks to the company. Applications are then serially numbered and recorded in the share application and allotment book. Allotment of share. Allotment is the allocation of shares to the successful applicants by the directors of a company. The applications for such shares by the members of the public are proposals. They may be accepted by the board of directors in full, rejected in full or accepted in part. It must be noted that the directors of the company cannot proceed to allot shares unless minimum subscription mentioned in the prospectus has been received by the company. इस पे बात हो रही थी ना कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो अलॉटमेंट का प्रोसीडियर शुरू ही नहीं कर सकता डायरेक्टर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं आया है. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा? When an offer is accepted, the successful applicants are sent letter of allotment stating the number of shares allotted and the amount of allotment money. Acceptance of offer brings a contract into existence and the applicants become shareholders. Shareholders are liable to pay the unpaid amount of shares, that is nominal value minus application money, as and when called or required. Those applicants to whom shares could not be allotted are sent letter of regret together with refunds of their application money. जिनको शेयर नहीं मिले उनके पैसे वापस किए जाएंगे. एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ उनका पैसा वापस किया जाएगा खेद पत्र के साथ, लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ.
उसके बाद कॉल करना है आपने टू मेक कॉल ऑन शेयर्स, द अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर आफ्टर द पेमेंट ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट मनी इज कॉल्ड calls. In fact, if whole amount of share is not demanded and paid on application and allotment, the balance may be called by the directors in one or more installment named first call, second call, etc. Calls should be made strictly according to the provisions of the Articles of Association or the provisions of Table F of the Schedule of the Companies Act 2013. पहले टेबल ए था, अभी टेबल एफ है। और टेबल एफ कब लागू होता है पता है आप लोगों को? कंपनीज एक्ट तो पढ़े हो ना यार, टेबल एफ के बारे में नहीं पढ़े? पढ़े? क्या है टेबल एफ? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से आता है नोट लिखने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? सर इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। तब नोट लिखने आएगा उस पे। और यहां जो पॉइंट है कि टेबल एफ क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टेबल एफ। नहीं मालूम? लिखिए ये सब, आपका दोनों तरफ काम आने वाला है। ये कंपनी अकाउंट्स में भी आ सकता है और आपके कंपनी लॉ में भी आ सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर लिखा है कि कितना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है टेबल एफ में। नहीं, टेबल एफ 99 नियम की सूची है। जो कंपनी अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती और इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC नाम सुना होगा आपने, तो वहां दाखिल करना पड़ता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है MOA आपने फाइल कर दिया है लेकिन आर्टिकल्स आपने नहीं बनाया है, AOA आपने नहीं बनाया है, तो ऑटोमेटिकली टेबल एफ लागू होगा और उसमें नियम दिए गए हैं। बात समझ गए? तो इसीलिए लिखा है यहां पे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ। क्यों लिखा है ये लाइन? कि आपका आर्टिकल बना है तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रोविजन लागू होगा, और अगर आपने आर्टिकल नहीं सबमिट करा तो टेबल एफ लागू होगा। टेबल एफ में ऑलरेडी कंपनीज एक्ट ने बना के दे दिया है रूल्स। इंटरनल मैनेजमेंट को चेकआउट करने के लिए रूल है आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का चार्टर होता है। ये सब क्लास 11th में पढ़ते हैं बच्चे यार, और आप लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और ये सब चीज नहीं पता है। अब प्रोस्पेक्टस नहीं पता आप लोगों को तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। चलो सुनो, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गिवन इन शेड्यूल 1 Table F on Rule 13 regarding calls are as under. No call shall exceed 1/4 or 25% of the nominal value of shares. There must be at least 1 month gap between two calls. अभी सब टेबल एफ का बता रहा है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अपना आर्टिकल बना लीजिए, ठीक है। There must be at least 1 month gap between two calls. At least 14 days notice must be given to members to make the payment of call. The notice must specify the time or times and place of the payment. A call may be revoked or postponed by the board of directors. Calls must be made on uniform basis on all the shares within the same class of shares. अब आएगा बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे बात हो रही थी ना, इस पे भी आता है। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? और आप जानेंगे ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? आप जानना तो पड़ेगा ना, जानेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लिख देंगे। Minimum subscription or allotment of securities by a company. Minimum subscription refers to the minimum amount of capital stated in the prospectus of the company that should be subscribed for by the public before the company can proceed to allot shares. Section 39 of the Companies Act 2013 provides that no allotment of any securities of company offered to the public for subscription shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sums payable on applications for the amounts so stated have been paid and received by the company by the check or other instrument. मिल जाना चाहिए उतना। कंपनी को ही फिक्स करना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कोई दूसरा नहीं फिक्स करेगा।
कंपनी कैसे फिक्स करेगी? तो अपना प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को देख करके फिक्स करेगी कि कितना अमाउंट हमें मिनिमम आ जाना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी ज़रूरत है, अमाउंट कितनी ज़रूरत है कंपनी को टू स्टार्ट विद, और उतना अमाउंट आ गया तो कंपनी अलॉट करेगी शेयर। The amount payable on application on every security shall not be less than 5% of the nominal amount of the securities or such percentage or amount as specified by SEBI. If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus or such other time as may be prescribed by SEBI, company cannot proceed to allotment of shares and shall return the whole amount within 15 days. ये सारी बातें आपकी आ रही हैं ना, जो हम लोगों ने कल लास्ट जो यहाँ पे किया था। तो आप लोगों ने कहा था कि शुरू से करने का है, तो शुरू से ही करा जा रहा है। ओके, इंटरेस्ट की बात है कि इफ एप्लीकेशन मनी इज नॉट रिपेड विद इन 15 डेज एज स्टेटेड इन सेक्शन 39, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम विल बी पेड फॉर द डिलेड पीरियड। इंटरेस्ट रेट याद रखिएगा। रूल 11 कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014। सेबी गाइडलाइन क्या कहता है कि एज पर सेबी सर्कुलर नंबर 12 ऑफ जून 17 2014 रूल 1C कंडीशन ऑफ 90% एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू शेयर्स हैव बीन विथड्रॉन। ये विड्रॉ कर लिया गया कब? 2014. Now it requires merely disclosure of minimum subscription in the offer document as required under section 39 subsection 1 of the Companies Act 2013. Hence the minimum subscription may now be 100% or may be 50%. Clear है? Purpose of minimum subscription क्या है? The minimum subscription must be sufficient for the following purposes. अब देखो यही चीज आपको समझना है कि for the payment of purchase price of any property purchased or to be purchased, उतना आ जाना चाहिए कि भाई प्लांट लगा रहे हैं तो उतना पैसा आ जाना चाहिए। कंपनी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? दूसरा, for the payment of any preliminary expense or any commission or brokerage on issue of shares, वो पैसा तो आ जाना चाहिए कम से कम। For the repayment of any money borrowed by the company for the above two purposes, इन दोनों काम के लिए कंपनी ने कुछ उधार लिया था तो उसको चुकाने के लिए पैसे आ जाने चाहिए। For working capital मतलब कंपनी को सर्कुलेट कराना है, चलाना है, तो उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उतना पैसा कंपनी के पास होना चाहिए। For any other expenditure required for the usual conduct of the business operations, पैसा ही नहीं आया उतना जिससे कि आपकी बिजनेस रूपी गाड़ी आगे बढ़ सके, तो आप कैसे अलॉट कर देंगे शेयर्स? उतना होना चाहिए ना। Full subscription, when the public has subscribed equal to shares offered by a company for subscription, this is said to be fully subscribed. For example, if a company has offered 20,000 shares to the public and the public has applied for 20,000 shares, it is said to be full subscription. Under subscription का मतलब साफ है, समझ रहे हैं? Under subscription, when the number of shares applied for by the public is less than the number of shares offered to the public for subscription, the issue is termed as undersubscribed. The accounting for undersubscription is done in the usual way with the number of shares applied for by the public. In this case, company can satisfy all the applicants in full, provided the minimum subscription has been received. Minimum subscription मिल गया, undersubscribed है, no problem. कंपनी 20,000 शेयर जारी की थी, कंपनी को 18,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आया है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है, कंपनी 18,000 शेयर पर आगे बढ़ सकती है, मांग सकती है 18,000। 2,000 का एप्लीकेशन ही नहीं आया तो 2,000 छोड़ दीजिए, 18,000 पर एंट्री सारी कर लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी 20,000 शेयर जारी की थी, 25,000 के लिए एप्लीकेशन आ जाए, 40,000 के लिए एप्लीकेशन आ जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। When the application money is received for more number of shares than the number of shares offered to the public by a company is called oversubscription. When the shares are oversubscribed, the company cannot satisfy all the applicants. संभव ही नहीं है। कंपनी 20,000 शेयर जारी की थी, कंपनी को एप्लीकेशन आ गया 25,000 के लिए, तो सबको 25,000 शेयर नहीं मिल जाएगा। बात सही है? In circumstances, in those circumstances, what the company can do, the company cannot satisfy all the applicants. This is due to the reason that the total number of shares to be allotted will no case exceed the number of shares offered. उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो क्या करना होगा फिर? प्रो राटा अलॉटमेंट का केस आएगा, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन उसकी ज़रूरत है। प्रो राटा अलॉटमेंट होगा या फिर कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन पूरा रिफंड कर दे या फिर पार्शियल रिफंड करे, पार्शियल एडजस्ट करे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है?
Preliminary expense are those expenses which are incurred in connection with the formation or promotion of a company. It is also termed as incorporation expense, promotion expense or formation expense. Preliminary expenses include the following expenses: registration fee, stamp duty. सही है? कंपनी स्थापित हुई तो खर्च तो होगा ना, और उससे पहले ही कंपनी शेयर जारी कर देगी क्या? रजिस्ट्रार को फी देना है, तो ये सब तो खर्चे पहले ही हो जाएंगे ना. Registration fee and stamp duty, cost of drafting, printing of different documents and issuing prospectus, underwriting commission payable, advertising and other expenses incidental to formation, cost of preliminary books and common seal, etc. Accounting treatment of preliminary expense. Preliminary expense should be written off in the year in which they are incurred and shall not be carried forwarded in the balance sheet to be written off in the subsequent accounting periods. Para 17, Guidance Note ICAI. मतलब इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को उसी साल राइट ऑफ कर दिया जाता है. और क्या करते हैं एंट्री, कहाँ से राइट ऑफ करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को? क्या आपको कोई आइडिया है इस बात का? कैपिटल प्रॉफिट होगा तो उसे राइट ऑफ कर सकते हैं. हाँ जी. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट शुड बी रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम परमिटेड बाय सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. याद रखिएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम से हम किसको राइट ऑफ कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को. ठीक है ना. अगर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे जारी किया है और प्रीमियम मिला है कंपनी को, सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे. क्लियर है? Thereafter, balance of preliminary expense account, if any, be written off with surplus of a statement of profit and loss. अगर उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो उसको हम लोग कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से. इफ देयर इज नॉट क्रेडिट बैलेंस, होना चाहिए इफ देयर इज नो क्रेडिट बैलेंस, नॉट नहीं होना चाहिए. इफ देयर इज नो क्रेडिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट शुड बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव आइटम. शेड्यूल 3 बैलेंस शीट कंपनी का, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम के रूप में आपको इसको शो करना है. किसको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस जो बचा है, जो अभी राइट ऑफ नहीं हो सका. जर्नल एंट्रीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ. आईपीओ आ गया. आईपीओ initial public offer, making an offer inviting the public in general to subscribe to shares for the first time is generally known as initial public offer. Such shares are called shares available for public. Such issue is also called public issue of shares. These shares may be issued to public at par or at premium but not at a discount due to restrictions as per section 53 of the Companies Act 2013. 1956 में सेक्शन 78 था, अभी 2013 में ये 53 है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कंपनी को आईपीओ डिस्काउंट पे लाने से. लेकिन प्रीमियम के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिटेशन नहीं है, आप प्रीमियम पे जारी कर सकते. लर्न अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स और प्रोसेस व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर कैश. यहीं से शुरू होगा. चलिए, इलस्ट्रेशन 1 है, इसको करिए आप सभी लोग. The authorized capital of Vaishali Limited is rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of rupees 10 each. Out of these, the company issued 1 lakh equity shares for subscription to the public. The public applied for 80,000 equity shares and all the money was duly received. How will you show the share capital in the balance sheet? Also prepare notes to account for the same. कर सकते हैं? करिए. देख लीजिए, 2 इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन, 4 इलस्ट्रेशन, 5 इलस्ट्रेशन. No accounting entries on calls in arrears and calls in advance. Calls in arrear के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है. उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन 2. ये सारे प्रैक्टिकल सेगमेंट आएंगे.
तो पहले आपको इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 करना है आपने। आप अकाउंटिंग एंट्रीज ही करिए इसकी। अकाउंटिंग प्रोसेस फिलहाल आप ये करिए। ओके